قوم کی کوئی دولت اس کے اپنی لوگ نہ استعمال کرتے ہیں نہ اس میں باقی رہتی ہے. اور اس سارے کام کو کرنے کے لیے جو اسٹرکچرل ریفارم پروگرام ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے کہ ملک کے کلیدی عہدوں پہ, ملک کی اہم جگہوں پہ ان کے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں, چاہے فائنانس منسٹر ہوں, چاہے اسٹیٹ بینک کی اسٹریٹجک لوکیشنز ہوں, چاہے وہ ہماری باقی منسٹری یا سی بی آر یا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا مختلف جگہوں پہ اپنے لوگ بٹھاتے ہیں. لہذا پورے ملک میں کوئی چانس ہی نہیں باقی رہتا اس بات کا کہ ملک کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے گا. جب خوشحالی آنی شروع ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی چیز کو, تیل کو, انرجی کو, فیول کو, گیس کو, بجلی کو مہنگا کر دیتے ہیں. جب خوشحالی آتی ہے یہ ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں. جب خوشحالی آتی ہے یہ سبسڈی اور جو کنسیشنز ہیں جو زراعت پہ دی جاتی ہیں ان کی پالیسیز ہی ایسی ہوتی ہیں کہ دے میک شور کہ جو قرضے سے بینیفٹ مل سکتا ہے, جو قرضہ لے کے کوئی قوم اگر کوئی کام, کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی نہر, کوئی کینال, کوئی ڈیم بنانا بھی چاہتی ہے تو یہ اس کا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں ان پالیسیز کی وجہ سے. سو پاکستان کے لیے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اپنے فورن ایکسچینج ریزرو شفٹ کرے, ڈالر سے نکال کے ڈائیورسفائی کریں ویریس کرنسیز میں, چاہے ہم کو جاپانیز ین میں جائیں, چاہے چائنا میں اپنے اکاؤنٹ رکھیں. چائنا کبھی ہمارے اکاؤنٹ فریز نہیں کرے گا, ہم اس کو چائنیز بینکوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہم مسلمان بینکوں میں جا سکتے ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں. یہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں ٹیمپرری ارینجمنٹ کی, اس کو ہم سولوشن کے طور پہ نہیں دے رہے ہیں, لیکن ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی, چونکہ ہم باہر ہمارے ملک میں حکومت ہماری تمام تر ڈیل ہی اس بینکنگ سسٹم اور پیپر کرنسی میں کر رہی ہے اور ڈیجیٹل اکانومی میں کر رہی ہے, تو فی الحال اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں کفر کے نظام کو ہی آپس میں لڑانے کے لیے ایک ارینجمنٹ یہ ہے کہ ڈالر سے باہر آئیں. پہلی بات. نمبر 2, گولڈ ریزرو بلڈ کرنا شروع کریں. اگر یہ گولڈ ریزرو بہت پہلے سے بنانا شروع کر دیتے تو نہ جانے آج ہمارے پاس کتنا ہو چکا ہوتا, لیکن پرائرٹی ہی نہیں تھی, بلکہ گولڈ بیچ بیچ کے یہ ڈالرز کماتے رہے. فورن ایکسچینج گولڈ ریزرو ہمارے کم ہوتے رہے اوور پیریڈ آف ٹائم, بڑھتے نہیں رہے. تیسرا کام جو پاکستان کو لازمن کرنا ہے وہ یہ کہ ہم ایران, روس اور وینیزویلا کی طرح اپنی ٹریڈنگ ڈالر کی اکانومی چھوڑ کر یورو یا دوسری کرنسی بیسڈ اکنامک ماڈل میں جائیں, ایک آلٹرنیٹ اکنامک کیمپ میں جائیں. یہ سب سے اہم سٹیپ ہوگا اس کفر ہی کے نظام کو آپس میں لڑوانے کا. ہمارا گولڈ ریزرو بلڈ ہو, ہم پرائمریلی امریکن بینکوں سے, امریکن سسٹم سے باہر نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ یہودی اس کو ہمارے سارے اکاؤنٹس ان کے پاس ہیں اور جو کہتے ہیں انگریزی میں آل ایگز ان ون باسکٹ ہمارا اس وقت ہوا ہے. ہمارے تمام ریسورسز اور ایسٹس برٹش اور امریکن بینکس میں ہیں, اور یہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ دونوں طرف راسچائلڈ اور راک فیلرز اور وہی زائنس اور وہی بینکنگ سسٹم, وہی بینکنگ ماڈل ہے کہ جو فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. انہی بڑے بڑے بینکوں میں پاکستان گورنمنٹ نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں, اور یہ سارے پیسے مسلمانوں کے جو سعودی عرب سے سیکھیے, ایران سے سیکھیے. سعودی عرب کی تمام دولت غرق ہونے والی ہے. جس لمحے سعودی عرب نے ذرا ڈیفیکلٹی کریٹ کی امریکنز کے لیے, اس کے سارے ایسٹ سیز کر دیے جائیں گے. امریکن کر چکے ہیں ایرانیوں کے ساتھ یہ, اور دنیا کے ہر اس ملک کے ساتھ کر چکے ہیں کہ جو ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے. ہمیں کیوں نہیں سبق ملتا اس بات کا؟ کیونکہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انہوں نے ہم پر حملہ بھی کرنا ہے اور ہم سے جنگ بھی کرنی ہے اور ہمارا بیڑا غرق بھی کرنا ہے. یہ ان کی خیال ہے, ہوگا نہیں انشاءاللہ, لیکن یہ ہمارے اکاؤنٹس, ہمارے ایسٹس, ہمارے پیسے, ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو, اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ڈالر سے ڈائیورسفائی کریں, اس لیے کہ ڈالر دنیا میں اب کریش ہو رہا ہے. دنیا کی تمام اکانومیز ڈالر کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یورو میں یا دوسری کرنسیز میں. حالانکہ یورو کا اپنا حال یہ ہے کہ یورو دنیا کی وہ واحد کرنسی ہے جس کا کوئی ملک نہیں ہے. عام طور پہ ملک ہوتے ہیں اور ان کی کرنسی ہوتی ہے, اور یورو ایک ایسی کرنسی ہے جس کا کوئی ملک نہیں ہے. یعنی وہ تو ایک عجیب و غریب فیک پیپر کرنسی بیسڈ اکنامک ماڈل میں یہی جادو ہے کہ آپ جو جادو چاہیں وہ چل پڑتا ہے. یہاں پر 100 روپے کے آپ 1000 بنا دیتے ہیں, 1000 کے لاکھ بنا دیتے ہیں, اصل سونا نکال کے آپ ڈیجیٹل کرنسی پہ, ڈیجیٹل اکانومی پہ چلے جاتے ہیں. ایک کرنسی بنا دی جس کا ملک ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یورو اور ڈالر آپس میں کلیش کرتے ہیں. صاحب بات کو کنٹینیو رکھیں گے, ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. جی زید صاحب کنٹینیو پلیز. دیکھیے, جب یورو اور ڈالر آپس میں اس وقت, کیونکہ یورپین اکنامک ماڈل اور امریکن اکنامک ماڈل گو کے دونوں طرف زائنسٹ ہیں, لیکن ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان قوموں کی بھی, جو انگریز قومیں ہیں اور امریکن قوم ہے, ان کا آپس میں تصادم ہے. بزنس انٹرسٹ کے لیے یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. وہ کہ لڑتے سارے مسلمانوں کے اوپر ہی ہیں, مسلمانوں کے وسائل پہ ہی ہیں. بوئنگ اور ایئر بس کا جو پرانا تصادم ہے وہ ان کی ہر اکنامک سسٹم ایکٹیویٹی میں ہے. وہی اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں, یہ بھی اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں. وہ زیادہ بہتر اپنے لوگوں کے لیے زندگی چاہتے ہیں, یہ اپنے لوگوں کے لیے بہتر چاہتے ہیں. معاملہ ان کی جھڑپیں ہیں آپس میں, ان جھڑپوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ان کی کرنسیز آپس میں ٹکراتی ہیں, اور پھر جب دوسرے اکنامک ماڈلز ہیں ہمارے پاس, یعنی جس طرح چائنیز بینکس ہیں, جس طرح ہمارے پاس رشین بلاک ایمرج ہو رہا ہے, ابھی ایس سی او کا بلاک ایمرج ہو رہا ہے,
ईरान बजाते खुद बीच में खड़ा हुआ है, वेनेजुएला है, क्यूबा है, बड़े बड़े एनर्जी प्रोड्यूसिंग मुल्क ऐसे हैं कि जो इस वक्त इस वेस्टर्न जायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम डॉलर के मुकाबले पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उन बेचारों के पास हल नहीं है कोई, वो हल जो मुसलमानों के पास है, लेकिन कम से कम ये स्टैंड ले रहे हैं डॉलर के मुकाबले में, और हमें इसमें शामिल होना चाहिए इनके साथ। अपने आप को डॉलर के कैंप से निकालें और रियल वेल्थ बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल पर जाएं। हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए, अपनी दुनिया में दूसरी ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा लिक्विड कैश हमें चाहिए होगा, अकाउंट्स हमें चाहिए होंगे, लेकिन वो दूसरी करेंसीज में भी हो सकते हैं। थोड़ा सा डॉलर में भी रखा जा सकता है, थोड़ा सा यूरो में, थोड़ा सा येन में, थोड़ा सा युआन में, रियाल में, डिफरेंट। इसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस और इंपोर्ट्स और अपने तमाम मामलात को तय करने के लिए फॉर द टाइम बिंग। शॉर्ट टर्म की बात हम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उसके भी सोल्यूशंस पे हम आएंगे। महातीर मोहम्मद मलेशिया के, जिन्होंने मलेशिया को कहां से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, रॉन पॉल जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो अभी हारा है, दुनिया की तमाम सीरियस इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स इस बात को रियलाइज करते हैं आज के दौर में भी कि गोल्ड बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, और खास तौर पे मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट अब दोबारा रिवाइव हो गया है कि हमें गोल्ड कॉन्सेप्ट, गोल्ड ट्रेडिंग की तरफ हमने जाना है। तो डॉक्टर महातीर ने कॉन्सेप्ट ये दिया है कि मुसलमान ममालिक अपने ओआईसी में, इकोनॉमिक मॉडल में, इकोनॉमिक ब्लॉक में जो तिजारत करें वो डॉलर या यूरो बेस्ड करने के बजाय वो गोल्ड बेस्ड करें, रियल वेल्थ बेस्ड करें। पाकिस्तान को भी अपनी तिजारत के इन एवेन्यूज को तलाश करना पड़ेगा। मिसाल यह है कि उन्होंने मिसाल यही भी दी थी कि अगर आप मलेशिया से तिजारत करते हैं, पाकिस्तान 1 करोड़ रुपए की चीजें मंगवाता है मलेशिया से, मलेशिया 80 लाख रुपए की चीजें मंगवाता है, तो जो 20 लाख रुपए का बैलेंस पाकिस्तान ने पे करना है मलेशिया को, वो गोल्ड में ट्रांसफर किया जाए। इस तरह गोल्ड की बहुत भारी तादाद जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड है, दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ चीजें खरीदारी कर रहे हैं, और जो खरीदारी वो करें वो आपस में एडजस्ट कर ली जाए, और जो बैलेंस है पेमेंट सोने में ट्रांसफर किया जाए। इससे एलसीज जो है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, तिजारत है, सब कुछ गोल्ड बेस्ड हो। और उसके लिए वही बात इनिशियली कि फिर आपको एक गोल्ड एक्सचेंज चाहिए होगा, एक ऐसा बैतुल माल, एक ऐसा एक्सचेंज कि जहां पे अकाउंट्स गोल्ड में खोले जा सकें। और अगर कोई चंद ममालिक मिलकर, माशाल्लाह मुसलमानों के पास इतनी दौलत है, अगर चूंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है कोई इंटरनेशनल ट्रेड कोई मुल्क अकेला तो नहीं करता, दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर करता है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, उन तमाम ममालिक के साथ जो इंतहाई दौलतमंद है, जिनके पास तेल की दौलत भी मौजूद है, और उन गैर मुस्लिम ममालिक के साथ भी। देखिए ये लोग जब मुसलमानों में, इनकी सारी तजारत मुसलमानों के साथ है, इन गैर मुस्लिमों की, ये अपनी हर चीज मुसलमानों में बेचते हैं। हम खरीदार हैं, हम शर्तें भी लगा सकते हैं। अगर हम ये शरायत लगाएं इनके साथ कि हम आपकी चीजें उस सूरत में खरीदेंगे कि जब कोटेशन हम डॉलर्स में नहीं गोल्ड में करेंगे, उस सूरत में करेंगे कि जो चीजें हम आपको बेच रहे हैं हम पेमेंट आपसे गोल्ड में लेंगे या रियल वेल्थ बेस्ड पेमेंट्स लेंगे। हम अगर कोशिश करें, शर्तें लगाएं, अटेम्प्ट, और इस पे एक मजबूत होकर एक ब्लॉक बना लें कई मुसलमान ममालिक का, तो ये गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है। यहां पे एक मजबूत हुक्मरान की जरूरत है। हमें किसी ने बताया, हम इसको कंफर्म नहीं कर सके इस बात को, कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस बात को करने की कोशिश की थी अपने दौर में। उन्होंने ओआईसी का इजलास बुलाया था लाहौर में, और मुस्लिम ब्लॉक को यूनाइट करने की कोशिश की थी, गोल्ड दिनार की बात भी की थी, और ऑयल उस जमाने में मुसलमानों ने तेल को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। शाह फैसल शहीद ने और जकी यमनी जो ऑयल मिनिस्टर थे उस वक्त, और पूरे यूरोप को और अमेरिका को इकोनॉमी तबाह करके रख दी थी कि जब मुसलमानों ने तेल को एज हथियार इस्तेमाल किया था। तो मकसद उस वक्त भी यही था, जो चीज सामने आई कि अगर मुसलमान मिलकर एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाए, उस वक्त मुसलमानों के जो तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक थे, उन्होंने मिलकर फैसला किया था कि हम तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसका कलेक्टिव इंपैक्ट इतना हुआ कि पूरे यूरोप की और मगरब की और अमेरिका की कमर तोड़ के रखती उन्होंने। इसी तरह अगर आज चंद मुसलमान और पाकिस्तान, वो चंद मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर, देखिए हमारे पास वेपन्स है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास आर्म फोर्सेज हैं, हम भी ये नहीं कि हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं उनके साथ, हम एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट में उनके साथ जाएं और एक कलेक्टिव इकोनॉमिक ब्लॉक बनाएं, जिस तरह यूरोप में उन्होंने बनाया हुआ है, यानी यूरो करेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा मुल्क, एक ऐसी करेंसी जिसका कोई मुल्क ही नहीं है, 10-15 मुल्कों ने मिलकर एक करेंसी अपनी बना ली है। इसी तरह मुसलमान ममालिक भी आपस में ट्रेड करने के लिए एक कॉमन करेंसी दीनार और दिरहम के तौर पर लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग गोल्ड बेस्ड हो। जब कोई पाबंदी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इस काम को करने में कि मुल्क के अंदर आप जिस तरह मर्जी अपनी मईशत को चलाइए, लेकिन जब आपस में तिजारत करें तो हम ट्रेडिंग गोल्ड में करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे डॉक्टर महातीर ने रेकमेंड किया था कि जो मेन बॉडी है ट्रेड की, जो ज्यादा, जो कि माल के बदले माल जो ट्रांसफर है, वो आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लिया जाए, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो गोल्ड ट्रांसफर में हो। ये किया जा सकता है। अब तक क्योंकि किया नहीं गया है, लिहाजा नामुमकिन लगता है, वरना माशाल्लाह हमारे पास वसाइल भी हैं, सऊदी अरब के पास तेल भी है, सोना भी है।
ईरान के पास तेल है, हमारे पास भी तेल और सोना और गैस और कोयला और दुनिया जहान की खुराक और गल्ला और दुनिया जहान के हमारे पास अल्लाह की दी हुई दौलत और नेमत मौजूद है। हम सिर्फ हमारे हुक्मरान चूंकि IMF और वर्ल्ड बैंक ही के अपॉइंट किए हुए होते हैं या उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स उनके अपॉइंट किए हुए होते हैं, लिहाजा इस किस्म की किसी बात को कहना भी जुर्म है इस मुल्क में। इसी दुनिया में इन बातों को कहना और दोहराना जुर्म है, वरना हकीकत में इस सिस्टम को तोड़ना, इसके मुकाबले पर खड़े होना और एक ऑल्टरनेट इकोनॉमिक मॉडल प्रेजेंट करना इतना आसान है कि नाकाबिले यकीन लगेगा आपको। लेकिन इट इज अ डूएबल जॉब, इट कैन बी डन, इट मस्ट बी डन, इट विल हैव टू बी डन। यानी हमें कोई चॉइस नहीं है हमारी इसमें कि हम बराह रास्त अब मगरिब के इस इकोनॉमिक मॉडल से अपने आप को निकालने की कोशिश करें और अपना इकोनॉमिक मॉडल बनाएं कि जो कम से कम मुसलमान ममालिक में, देखिए एक मर्तबा अगर एक मुसलमान इकोनॉमिक ब्लॉक बन जाता है जो इंसिस्ट करता है कि हम बायलैटरल ट्रेडिंग या बार्टर करेंगे माल के बदले माल, यानी हम सऊदी अरब से अगर तेल लेते हैं तो हम गंदम उनको देंगे, हमारे यहाँ चावल और गंदम इतनी पैदा होती है, या हम सऊदी अरब से अगर तेल लेते हैं तो हम उनको डिफेंस इक्विपमेंट और मिलिट्री सप्लाईज हम उनको देते हैं। एक मिसाल की बात है, इस तरीके से कई मुसलमान ममालिक के साथ हमारी तिजारत जो है वो माल के बदले माल हो सकती है, जो रियल वेल्थ में होगी, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, सूद नहीं लेना पड़ेगा, पेपर करेंसी बेस नहीं होगा, डॉलर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर आप निकल आएंगे। और फिर जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो आपके पास सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, जो आमदनी आपके पास आती है, उससे आप और मुल्क में अगर आप अपनी करप्शन को रोक लें। पाकिस्तान का हाल यह है कि हमारे पास अगर 100 रुपए डेवलपमेंट फंड्स के हैं तो यकीन कीजिए 90 खयानत में चले जाते हैं। आज इसी मुल्क का हाल यह है कि आप सरकारी अफसरों को देखिए, 20,000 30,000 रुपए तनख्वाह है, लेकिन BMW और मर्सिडीज में फिर रहे हैं। एवरीबडी नोज का पैसा हराम का है। एवरीबडी नोज के इस्लामाबाद में उनके 4-4 घर बने हुए हैं, करोड़ों लाखों रुपए की जायदादें और जागीरें जिसकी बनी हुई है, जिसकी तनख्वाह ही 40,000 रुपए है, जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपए है, वो कहां से लेकर आ रहा है? ये खयानत के पैसे हैं सारे। वो लोग जिनके मुल्क से बाहर अरबों 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 डॉलर की जायदादें बनी हुई हैं, जबकि मुल्क में तनख्वाह उनकी 50,000 भी नहीं है, ये कहां से बन रहा है सारा? इस मुल्क के सियासतदान, इसके हुक्मरान, इसके ब्यूरोक्रेट्स, इसके फैसला करने वाले, हर वो शख्स जिसको मुसलमानों के माल पर जिम्मेदार ठहराया गया है, वो इस खौफनाक अंदाज में खयानत कर रहा है कि यकीन कीजिए। और फिर ये वावेला इस बात का है कि वसाइल नहीं है। वसाइल अल्लाह के फजल से हैं। इन्हीं वसाइल की इस जो बात हमने पहले कही थी, खयानत रोकना जरूरी है। करप्शन हमारे मुल्क में अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि इसकी सजा मौत से नीचे नहीं होनी चाहिए। हाथ काटना तो बहुत छोटा रह गया मामला, हाथ काटना तो चोरी पे होता है, ये चोरी नहीं है। यहां पे तो गदर मचा हुआ है, यहां पे तो फसाद बर्पा हो गया, यहां पे तो मुल्क कौम की बुनियादें खोखली कर दी गई हैं। और जिस तरह चीन में उन्होंने किया था कि चीन में वो करते यही है कि अगर कोई सड़क किसी ने गलत बनाई है तो उसी कॉन्ट्रैक्टर को लाके सड़क पर लिटा के उससे बुलडोजर चला देते हैं, वो सड़क के अंदर ही दफन हो जाता है। उसके बाद पूरे चीन में सड़कें बिल्कुल ठीक बनती हैं। इसी किस्म का कोई रूथलेस मामला हमें अपने मुल्क में करना पड़ेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन का इस वक्त ये आलम हुआ हुआ है। लेकिन यकीन कीजिए इतनी दौलत और इतने वसाइल इस मुल्क में है कि अगर सिर्फ हम कम से कम 50% करप्शन भी इस मुल्क में रोक सके तो तमाम मसाइल जिनके आज आप बात कर रहे हैं कि वसाइल की कमी की वजह से इंशाल्लाह 2 साल के अंदर खत्म किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग हम गोल्ड रिजर्व बना सकते हैं अपना। बात जारी रखेंगे हम। अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ज़ैद साहब प्लीज कंटिन्यू। एक जो तरीका हमारी हुकूमत को और करना है वो ये कि अब कर्ज लेना बंद करें। ये बात हम बहुत सख्ती से कहेंगे, कर्ज लेना बंद करें। ये कर्ज इसलिए लेते हैं, इस बहाने पर लेते हैं कि मुल्क में वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। और जो कर्ज लिया जाता है उसका भी 90% हराम में खा जाते हैं। और जो मुल्क के अपने अंदर के वसाइल हैं, जैसे बात हम पहले बता चुके हैं, शायद ही कोई 10-15% अपनी जगह पे लगता है। और जो 10-15% लगता है उसके बाद ये मुल्क में तरक्की आप देखिए अल्लाह के फजल से कितनी है। पूरा निजाम चल रहा है, बिजली पानी गैस का निजाम भी है, रेलवेज भी है, एयरलाइंस भी है, सारा मामला है, सब चीज चल रही है। और सोचिए कि अगर जितनी आमदनी मुल्क में है, जितने डेवलपमेंट फंड्स मुकर्रर किए जाते हैं और 100% अगर अपनी जगह पे लग जाएं जाकर, तो इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही होती। वसाइल की कमी नहीं है, इंसानों की कमी है। दयानतदार ईमानतदार इंसानों की कमी है। वसाइल बहुत हैं। अगर सिर्फ अपने वसाइल को हम कंट्रोल कर लें, अपने खर्चों को हम कंट्रोल कर लें और अपने जमीन के खजानों को हम इस्तेमाल कर लें तो हमें कर्ज लेने की हाजत नहीं हो। ये मुल्क पर जो 40 अरब डॉलर का कर्जा डाला है, अभी हम इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप हमारी हुकूमत को अभी लेना पड़ेगा कि जो मामलात करने हैं दूसरे ममालिक के साथ मुआहदों के जरिए करें, सर्विसेज के रिटर्न में करें कि आप यहां पे डैम बनाइए, उसमें शराकत आपकी है, आप यहां पर आके पानी की नहरें खोदिए, आप यहां पे आके तवानाई और बिजली और गैस के जखीरों पे काम कीजिए, प्रोजेक्ट्स पे लगाइए। मुसलमान ममालिक के साथ ज्यादा मुआहदे